Hello, students. Today we are starting a new chapter that is reproduction in organisms, right? Reproduction in organisms. So, organisms are doing reproduction by various means. There are various methods of reproduction, and reproduction is essential for continuity of the species on earth. अर्थ के ऊपर स्पीशीज के कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल. In reproduction topic, first we will discuss what is lifespan. What is mean by lifespan? ठीक है. So lifespan is defined as the time gap between birth and natural death. The time gap between birth and natural death. It is called lifespan. ठीक है. And various lifespan are there. Different organisms are having different lifespan. Some lifespan are very short, just 2 weeks. And some lifespan is in hundreds of years, है ना. अलग अलग लाइफ स्पैन है. फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करेंगे, फ्रूट फ्लाई इज हैविंग जस्ट 2 weeks ऑफ लाइफ स्पैन. फ्रूट फ्लाई 2 weeks ऑफ लाइफ स्पैन. राइस प्लांट में 3 to 4 months लाइफ स्पैन है. ठीक. रोज प्लांट में अगर देखेंगे 5 to 7 years लाइफ स्पैन है. 5 to 7 years लाइफ स्पैन. क्रो 15 years लाइफ स्पैन है. पैरेट 140 years लाइफ स्पैन है. 140 years लाइफ स्पैन. क्रोकोडाइल इज हैविंग 60 years ऑफ लाइफ स्पैन. टॉर्टॉइस की अगर हम बात करेंगे, टॉर्टॉइस जो है इसकी लाइफ स्पैन 100 to 150 years तक हो जाएगी. 100 to 150 years लाइफ स्पैन. बनियान ट्री की लाइफ स्पैन 200 to 300 years. बनियान ट्री 200 to 300 years. ठीक. डॉग की लाइफ स्पैन जो है 20 to 25 years. क्लियर है. हॉर्स की लाइफ स्पैन देखिए 60 years है. एनी हाउ, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज हैविंग लाइफ स्पैन. उनका एक लाइफ स्पैन होता है. द गैप बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, बर्थ और नेचुरल डेथ का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन. इट इज वेरिएबल. अलग अलग लाइफ स्पैन होते हैं. ठीक. चलिए, आफ्टर दिस what is mean by lifespan clear? Every living organism on earth is having birth and natural death. There are no immortal organism except unicellular organism. Unicellular organism को हम बोलते हैं immortal. Immortal mean they are not having natural death. Unicellular organism. ऐसा क्यों बोला गया? बनियान ट्री की अगर बर्थ हो रही है तो डेथ भी होगी, ह्यूमन की बर्थ हो रही है तो डेथ भी होगी. बट इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमोएबा, बैक्टीरिया, ठीक है, ये अमोएबा बैक्टीरिया में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड इमॉर्टल. फर्स्ट ये लिख लो, उसके बाद हम लिखेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड इमॉर्टल. सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ स्पैन देखें हम. नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नो लिविंग ऑर्गेनिज्म is immortal
No living organism is immortal except unicellular organisms. Unicellular organism immortal होते हैं. What is mean by immortal? That mean they are not having natural death. इनकी खुद की natural death नहीं है. No living organism is immortal except unicellular organism. मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं है. ऐसा क्यों बोला गया? दिस इज बिकॉज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स parent body splits into their daughter cells at the time of reproduction. In case of unicellular organism, what happened? The parent body divide and become two half at the time of reproduction. Suppose this is one amoeba and this amoeba splits into two daughter amoeba. So this is the feature in case of unicellular organisms where parent body splits. Parent body दो equal half में divide हो जा रही है. This is called unicellular organism reproduction. In case of unicellular organism, parent body splits into two daughter cells at the time of reproduction. In case of human, one father, one mother compulsory required, and their daughters are formed, their sons are formed, right? Parents remain as their parents. Parent is not disappearing in case of sexual reproduction. But यहाँ पर देखिए, जब reproduction हो गया है, the parent body distributed into two daughter cells and parent disappeared. Parent ही split हो गया है यहाँ पर. Parent is splitted into two daughter cells. That means disappearance of the parent cell. So that's why we have to say unicellular organisms like amoeba, paramecium, they are not having natural death. For example, amoeba, paramecium, ठीक, even in case of bacteria. तो पेरेंट बॉडी ही डिवाइड हो रही है डॉटर सेल्स में. दैट मीन्स पेरेंट की डेथ ही नहीं हुई यहां पर. एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन दे गेट ओल्डर, पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू हाफ. दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इमॉर्टल. इमॉर्टल मतलब जिसकी डेथ नहीं होती. ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देखिए, फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, second vegetative reproduction, and third one is sexual reproduction. So asexual reproduction, vegetative reproduction, sexual reproduction, three types of reproduction. ठीक है. Asexual reproduction is very fast, simple. Asexual reproduction कैसा होता है? It is very fast. The fastest method of reproduction is asexual reproduction and is very simple. Occurs in favorable condition. Occurs in favorable condition में होगा asexual reproduction. Asexual reproduction कैसा है? Fast है, simple है, and occurs in favorable condition means
when all the conditions are life supporting, जब सारे कंडीशन लाइफ सपोर्टिंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन. ठीक है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो वर्ड है, इट इज यूज फॉर हायर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए यूज हो रहा है ये वर्ड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के लिए यूज हो रहा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में हो रहा है, प्लांट्स में भी हो रहा है. हायर प्लांट्स, higher plants also do sexual reproduction. Animals do sexual reproduction, higher plants do sexual reproduction. Plants में vegetative reproduction भी है. In some plant vegetative reproduction is also there, sexual reproduction is also there. First we have written example, so where these type of reproduction can be seen. Vegetative reproduction जो है plants में देखेंगे आप, sexual reproduction एनिमल्स में, हाइयर प्लांट्स में, दोनों में देख सकते हैं. 9 o'clock. ओके. नाउ आफ्टर एग्जाम्पल, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेल डिवीजन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. Cell division is a method of reproduction in case of unicellular organisms. Is a method of reproduction in case of unicellular organisms. In case of unicellular organisms. Like amoeba, paramecium. अमोएबा, पैरामीशियम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, इन केस ऑफ ह्यूमन, सेल डिवीजन इज डिफरेंट, रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट. वेदर यू टेक द सेम मीनिंग, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, नो, नॉट एट ऑल. ठीक. देखिए, सेल डिवीजन अलग चीज है. हमारे स्किन में कोई सेल डिवीजन हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन बोलेंगे या रिप्रोडक्शन बोलेंगे? सेल डिवीजन बोलेंगे. बट इन केस ऑफ अमोएबा, इफ वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू डॉटर सेल, दैट इज सेल डिवीजन एज वेल एज रिप्रोडक्शन. दैट्स व्हाई सेल डिवीजन इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सेल डिवीजन इज सिनोनिम टू रिप्रोडक्शन. सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दिस इज नॉट फॉर मल्टीसेलुलर. ये लाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बोला जा रहा है. सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके. नेक्स्ट, reproduction is necessary for continuity of the species. Reproduction is necessary for continuity of the species. Continuity of the species. Species की continuity के लिए reproduction जरूरी है. Because each and every organism dies after a certain period of time, that is lifespan. So how the species continue? So many humans die, then also human species can be seen on earth. That is because of reproduction. Reproduction करते हैं ना organism. That's why it is necessary for continuity of species बोलेंगे. Life cycle अगर आप देखेंगे, लाइफ साइकिल इन्वॉल्व बर्थ, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स बर्थ, ग्रोथ, बर्थ है, ग्रोथ है, डेथ है. लाइफ साइकिल इन्वॉल्व बर्थ, ग्रोथ, डेथ. मतलब हर एक की लाइफ में बर्थ होगी फर्स्ट, फिर ग्रोथ होगा, फिर डेथ हो जाएगी ओल्ड एज में.
ये वेरी सिंपल पॉइंट्स हैं, सबको याद रहते हैं, जस्ट आप नोट्स में मेंटेन करना है, बिकॉज इन एग्जाम दे मे कम एज अ स्टेटमेंट की तरह आ जाते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट में आपको ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ लेट अस गो टू स्टडी asexual reproduction। asexual reproduction देखेंगे अभी। asexual reproduction is also called uniparental reproduction, one parent। ओके एक ही पेरेंट होता है asexual reproduction में, which may or may not involve gamete formation, may or may not involve gamete formation। first point, it is uniparental। यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट चाहिए यहां पर। asexual reproduction में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। सेकेंड पॉइंट, in asexual reproduction gametes may or may not be formed। it may occur with or without gamete formation। इट मे ऑकर विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। कभी कभी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट हो सकते हैं गैमेट्स, बट देर इज नो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होता है यहां पर। देर इज नो फर्टिलाइजेशन, देर इज नो मियोसिस भी नहीं होगा। In asexual reproduction, there is no meiosis। asexual reproduction में meiosis नहीं है। And very important point, asexual reproduction, it results in formation of clones। asexual reproduction result in formation of clones। आप बोलेंगे what are clones? Clones are morphologically, genetically similar। The offsprings which are formed by asexual reproduction, they are clones। Clones mean they are organisms which are morphologically as well as genetically similar। जो morphologically भी same है, genetically भी same है, उनको हम clones बोल सकते हैं। Clones are formed in asexual and vegetative reproduction में भी, in vegetative reproduction also। yes, clones are formed in asexual reproduction as well as वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों के मीनिंग सेम है, बोथ आर यूनिपेरेंटल। देन व्हाई वी आर यूजिंग टू सेपरेट वर्ड्स? asexual reproduction word is used for lower organisms like bacteria, amoeba, paramecium। vegetative reproduction word is used for higher plants। अगर asexual reproduction की तरह अगर कोई reproduction हो रहा है higher plants में, तब आप बोलेंगे vegetative reproduction बोलेंगे। otherwise the words asexual reproduction and vegetative reproduction are interchangeable, meaning same देते हैं। और एक पॉइंट यहां पे, what are clones? Clones are morphologically and genetically similar। morphologically and genetically similar। क्लोन जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली भी सेम, जेनेटिकली भी सेम रहते हैं। ओके, नाउ लेट अस लिस्ट आउट where asexual reproduction occur। asexual reproduction occur in the organisms of kingdom Monera, in the kingdom Protista,
and in algae. Asexual reproduction, it can be seen in Monera, Protista, and algae. फर्स्ट ईयर में आप पढ़े रहते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, अलगे, दे डू आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनमें रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल मेथड से होगा. ओके, नाउ लेट अस सी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स. टाइप्स कौन कौन से हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? Asexual reproduction occur by budding in yeast. This is one method of asexual reproduction, budding in yeast. Yeast क्या है? एक यूनिसेलुलर फंगस है. This is the parental yeast. Now at the time of budding, this yeast produces an outgrowth from the parent body. एक outgrowth बनता है. This is called bud. And this gradually, slowly, this bud increase in size and later on separate from the parent body. This is called budding. यही है budding. What is bud? Bud is an external outgrowth from the parent body. ठीक है. देखिए, बडिंग ईस्ट में भी होता है, बडिंग हाइड्रा में भी होता है. देखिए, हाइड्रा आल्सो डू बडिंग. ठीक. बड इज एन एक्सटर्नल आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी विच लेटर ऑन सेपरेट बाद में सेपरेट हो जाता है, ये कट हो जाता है, एंड सेपरेटली डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल और न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दैट इज बड. मैसेज किया. बडिंग इन्वॉल्व अनइक्वल साइटोकाइनेसिस. बडिंग इन्वॉल्व्स unequal cytokinesis. देखिए, ये पेरेंट बॉडी के साइज का नहीं होता बड. इट इज स्मॉलर देन पेरेंट बॉडी. बडिंग कैन बी सीन इन केस ऑफ ईस्ट. इट कैन बी सीन इन केस ऑफ हाइड्रा ऑल्सो. Let us draw hydra. This is the hydra. You know, hydra is a freshwater coelenterate. It has tentacles and it is having a mouth opening भी है यहाँ पर एक. This is hydra. First diagram is for yeast. Second diagram is for hydra. This is what hydra have, parent body, and from this parent body a small outgrowth is formed. This is called bud. ठीक है. और ये hydra के tentacles हैं which help in capturing the prey. Food पकड़ने के लिए help करते हैं. So here one point to be noted. What is yeast? Yeast is unicellular fungus. एक फंगस का नाम है yeast. और हाइड्रा क्या है? हाइड्रा is fresh water coelenterata है. Fresh water coelenterata. ऑल्सो कॉल्ड नाइडेरिया. मालूम है ना? सिलेंड्रेटा भी बोल सकते हैं आप, नाइडेरिया भी बोल सकते हैं. सो लाइक दिस वन बाय वन हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स देखते जाएंगे. फर्स्ट हम देखें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल, बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट
इन केस ऑफ हाइड्रा। बडिंग हो रहा है ईस्ट में, हाइड्रा में भी। बडिंग में क्या होता है, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एन आउटग्रोथ अपीयर्स, दैट इज कॉल्ड बड, विच लेटर ऑन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम। सेकेंड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे अब। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, complete the diagram. Okay, students, after knowing asexual reproduction in case of yeast and in case of hydra, it occurs by means of budding. Let us see the other methods of asexual reproduction. Asexual reproduction के दूसरे मेथड भी कंटिन्यू करेंगे हम. The second method of asexual reproduction, देखिए, in case of chlamydomonas, क्लामिडोमोनास क्या होते हैं? क्लामिडोमोनास आर यूनिसेलुलर ग्रीन अलगे क्लोरोफाइसी मेंबर्स होते हैं. एंड दीज क्लामिडोमोनास दे आर प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स. क्या बना रहे हैं? क्लामिडोमोनास प्रोड्यूसेस जूस्पोर्स. So zoospores, compulsory you should tell, zoospores are the motile flagellated spores. Motile flagellated, flagella देख रहे हैं आप इनको? Flagellated spores produced inside the chlamydomonas, helping for asexual reproduction. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम what is chlamydomonas. What is mean by chlamydomonas? लिखिए, Chlamydomonas is यूनिसेलुलर ग्रीन अलगे. अब क्या करिए, आपके नोटबुक में से एक पार्टीशन बना लीजिए, यूनिसेलुलर ग्रीन अलगे. इट प्रोड्यूसेस मोटाइल asexual spores. Motile asexual spores called zoospores. Zoospores मतलब इनको फ्लैजेला होंगे. ठीक है, सो आपके नोटबुक में से एक पार्टीशन बना लीजिए. दिस इज फॉर क्लैमिडोमोनास. ओके, नाउ द सेकेंड मेथड ऑफ asexual reproduction. दिस इज वन मेथड, जूस्पोर का हो गया. सेकेंड मेथड ऑफ asexual reproduction वी कैन सी इन केस ऑफ पेंसिलियम. पेंसिलियम में, पेंसिलियम भी एक फंगस है. पेंसिलियम इट इज ए फंगस, एंड दिस पेंसिलियम इट प्रोड्यूसेस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर. पेंटर्स जैसा ब्रश होता है ना, उस टाइप का ब्रश होता है. एंड दिस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूसिंग स्फेरिकल शेप नॉन मोटाइल स्पोर्स. और ये नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम बोलेंगे कोनीडिया. व्हाट आर कोनीडिया? कोनीडिया आर दी thick walled spores produced on the tip of brush like structure in case of penicillium. So this diagram is for penicillium. So penicillium fungus is producing what? Conidia. Conidia. So where conidia are produced? Conidia are exogenous spores. Exogenous. Exogenous means they are produced outside.
दे आर नॉट लाइक जूस्पोर. जूस्पोर अंदर बन रहे थे, क्लैमिडोमोनास के अंदर बन रहे थे ना. दिस इज द पेरेंट बॉडी क्लैमिडोमोनास विच आर प्रोड्यूसिंग सेवरल जूस्पोर. बट हियर कोनिडिया के स्पोर कैसे हैं? कोनिडिया आर एक्सोजीनस स्पोर, आउटसाइड द बॉडी हैं. एक्सोजीनस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन ब्रश लाइक स्ट्रक्चर. ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रश की तरह एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. ब्रश लाइक स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम फंगस. पेनिसिलियम फंगस. दिस इज आल्सो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो आसेक्सुअल मेथड के पूरे जो है ना हम डायग्राम्स एग्जाम्पल पूरे याद कर लेंगे आज के क्लास में. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी वी हैव टेकन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ईस्ट, इन केस ऑफ हाइड्रा. अभी जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लैमिडोमोनास में देख लिए हम. क्लैमिडोमोनास में हो गया है, पेनिसिलियम में हो चुका है. नाउ वन मोर asexual reproduction that is seen in case of amoeba. This is the parent body amoeba. Okay, parent body amoeba है. This amoeba first of all increases in size. Size में increase हो जाता है amoeba. Then divide its nucleus. न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है अपना. कैरियोकाइनासिस बोलेंगे, है ना. फर्स्ट वन न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, फॉलोड बाय साइटोकाइनासिस. मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा. दिस इज वन डॉटर अमोएबा, दिस इज अनदर डॉटर अमोएबा. सो इन दिस इज द डायग्राम ऑफ अमोएबा. तो पॉइंट्स क्या लिखेंगे आप देखिए. सबके पॉइंट्स एक दो पॉइंट जो है ना वो याद रखते चलना है. जूस्पोर के बारे में लिख दिया हम. जूस्पोर्स आर मोटाइल और नॉन मोटाइल. जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स. कोनिडिया, कोनिडिया दे आर एक्सोजीनस और एंडोजीनस. एक्सोजीनस. अब अमोएबा में ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. लिखिए यहां पे, अमोएबा मल्टीप्लाई asexually by binary fission. By binary fission. What is the method of asexual reproduction in case of amoeba? अमोएबा में जो रिप्रोडक्शन होता है asexually, that is occurring by method called binary fission, in which first of all parental amoeba increases in size, then nucleus divide, फिर nucleus divide हो जाता है, which is followed by division of cytoplasm. इसका मतलब ये हुआ कि अमोएबा में फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. सीक्वेंस यू शुड रिमेंबर. दिस इज अमोएबा बाइनरी फिशन. अंडरलाइन कीजिए, बाइनरी फिशन, वेयर पेरेंट बॉडी ब्रेक डाउन इनटू टू सिंपल डॉटर सेल्स. क्लियर है ना. चलिए, एंड वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड. और एक पॉइंट यहां पे नोट करेंगे हम. इन केस ऑफ अमोएबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अमोएबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन विथड्रॉस इट्स सीडोपोडिया, सीक्रेट 3 लेयर हार्ड कवर. अमोएबा के बारे में ही कंटिन्यू है इधर. अमोएबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, unfavorable condition means when conditions are not suitable, when conditions are very very drastic, very hard time to survive. ऐसे सिचुएशन में अमोएबा क्या करता है अपने. फर्स्ट ऑफ ऑल अमोएबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन withdraws its pseudopodia.
pseudopodia, and forms a three-layered hard cover called cyst. एक हार्ड कवर बनाता है अमोएबा सबसे पहले अनफेवरेबल कंडीशन में. दिस इज द अमोएबा. इट इज हैविंग सो मेनी आउटग्रोथ्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. या आउटग्रोथ्स को हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया बोलते हैं. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट विथड्रॉज ऑल द सीडोपोडिया. अपने जो आउटग्रोथ थे पूरे अंदर ले लेगा. एंड देन फॉर्म्स ए 3 hard layer around it itself. 1, 2, 3 hard covers. And this stage is called cyst. This process is called encystation. This process is called encystation बोलेंगे इसको. encystation बोलेंगे. Under unfavorable condition. फेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ? सिंपल वन पैरेंटल अमोएबा डिवाइडेड इनटू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. दैट इज बाइनरी फिशन. ये एंसिस्टेशन हो रहा है सेम अमोएबा में अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न हो जाएंगे, व्हेनेवर फेवरेबल कंडीशन returns, ठीक है. whenever favorable condition return, cyst wall breakdown, cyst का wall break हो जाएगा. 3 layers hard cover, cyst wall breakdown and releases many minute daughter amoeba. Many minute daughter amoeba, also called pseudopodiospores. Pseudopodiospores. This process is called multiple fission, also called sporulation. This process is also called, लिखेंगे यहां पर, this process is called sporulation और मल्टीपल फिशन भी बोल सकते हैं. मल्टीपल फिशन. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मल्टीपल फिशन? देखिए अभी क्या बताया था मैं, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दिस इज द पेरेंट अमोएबा. इट विथड्रॉज इट्स सीडोपोडिया and forms a very hard 3 layers. 1, 2, 3 layers. This stage is called cyst. After cyst formation, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होंगे तो पेरेंटल अमोएबा ब्रेकडाउन, सिस्ट वॉल ब्रेकडाउन एंड रिलीजेस मेनी डॉटर अमोएबा. और ये डॉटर अमोएबा बाहर निकल रहे हैं पेरेंटल अमोएबा से, बहुत सारे निकलेंगे एक साथ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोर्यूलेशन और मल्टीपल फिशन. समझने आई बात? मल्टीपल फिशन या स्पोर्यूलेशन बोलेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अमोएबा मल्टीप्लाई बाय व्हाट मेथड बोल के एग्जाम में क्वेश्चन आया. अमोएबा मल्टीप्लाई बाय व्हाट मेथड? सो योर आंसर शुड बी अमोएबा मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन एज वेल एज मल्टीपल फिशन. दोनों मेथड से मल्टीप्लाई करेगा. अमोएबा मल्टीप्लाई बाय व्हाट मेथड? Binary fission as well as multiple fission. So very very important. What is encystation? Formation of
very hard cover cyst during unfavorable condition around the body of amoeba is called encystation बोल रहे हैं उसको, cyst बोल रहे हैं। ठीक है, कितने लेयर्स हैं सिस्ट में, कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं हार्ड कवर्स। और जैसे ही सिस्ट ब्रेक हो जाएगा उसमें से पेरेंट बॉडी में से बहुत सारे अमोएबा निकलेंगे, डॉटर अमोएबा निकलेंगे। एंड दोज डॉटर अमोएबा आल्सो कॉल्ड, ये डॉटर अमोएबा को और एक नाम भी है सीडोपोडियोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सीडोपोडियोस्पोर्स। ठीक, समझ नहीं आई बात? अमोएबा मल्टीप्लाई बाई बाइनरी फिशन एज वेल एज मल्टीपल फिशन, दोनों। व्हाट इज द डिफरेंस? बाइनरी फिशन में ओनली 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। In binary fission only 2 daughter cells are formed. In multiple fission many daughter cells are formed. तो ये था asexual reproduction के कई टाइप्स देखे हम। Now one more asexual method of reproduction, that is gemule formation. Gemule formation. Gemule formation occur in some of the freshwater sponge. Freshwater sponge show gemule formation. Gemules. What are gemules? Gemules are multicellular. Gemules are multicellular endogenous buds. Multicellular endogenous buds हैं। What are gemules? Gemules are defined as multicellular endogenous buds हैं। They are produced inside the body of a sponge. Multicellular endogenous buds. Endo मतलब inside, एंडोजीनस बर्ड्स। ईस्ट में जो बर्ड्स थे वो एक्सोजीनस बर्ड्स थे। ईस्ट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ एन आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनस बर्ड। अब वो बर्ड की बात नहीं हो रही यहां पर, वी आर टॉकिंग अबाउट गेम्यूल्स। गेम्यूल्स आर एंडोजीनस बर्ड्स लाइक दिस। इफ आई शो यू डायग्रामेटिकली, दिस इज द गेम्यूल, इट हैज मेनी सेल्स। You can take down the diagram. Gemmules are multicellular, seen in case of freshwater sponge में देख सकते हैं। Can you name one of the freshwater sponge? याद है freshwater sponge का नाम? Spongilla, right? Spongilla है। And this multicellular endogenous buds are produced inside the body of a sponge, having, sponge में क्या होता है? Many needle like structures are present. Those needle like structures are called spicules. What we call them? Spicules बोलते हैं इनको हम। These are the spicules, needle shape structure. आप अगर याद है आपको फाइलम पोरीफेरा फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। द स्केलेटल मटेरियल ऑफ स्पॉन्जेस आर मेड अप ऑफ नीडल शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और ये इंटर जो अंदर है स्ट्रक्चर, ये गेम्यूल है। दीज आर द गेम्यूल्स। अपार्ट फ्रॉम दीज, फर्स्ट ईयर में आप और एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे मार्केंशिया में। डू यू रिमेंबर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मार्केंशिया? मार्केंशिया, यू कैन राइट नोट, फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, यहां बता रहा हूं मैं आपको, ये नीट के लिए याद रखना पड़ेगा। मार्केंशिया आर आल्सो रिप्रोड्यूसिंग, आर आल्सो हैविंग asexual bodies called gamma cups,
तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं गेम्यूल वर्सेस गेम्मा कप्स, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। देखिए मार्केंशिया, ऑफ कोर्स मार्केंशिया रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली आल्सो, मार्केंशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इन केस ऑफ मार्केंशिया पेरेंट बॉडी, ये रहा पेरेंट बॉडी ऑफ मार्केंशिया, इन दैट देर आर सम कप लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड गेम्मा कप्स। गेम्मा कप्स, मार्केंशिया इज ए ब्रियोफाइट, मार्केंशिया इज ए ब्रियोफाइट विच इज हैविंग गेम्मा कप्स फॉर asexual रिप्रोडक्शन। चलिए अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। What are the types of asexual reproduction that we have seen today? Complete एक लिस्ट बना लेंगे so that we can recall it whenever revision is required। आराम से वो लिस्ट आप रिवाइज कर लिए तो सारे चीजें याद हो जाएंगे। शॉर्ट में डायग्राम बना लीजिए गेम्यूल्स का। ओके चलो, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड देखिए हम, लिखिए आप अच्छे से बनाइए। बाइनरी फिशन, नंबर 1 बाइनरी फिशन कहां देखे थे भाई, अमोएबा में, बाइनरी फिशन अमोएबा में, ठीक है। चलिए और बताइए, बडिंग, बडिंग देखे थे कहां पे, ईस्ट में। और एक बडिंग देखे ना आप, बडिंग इन हाइड्रा आल्सो, बडिंग इन हाइड्रा आल्सो। नेक्स्ट बताइए, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो ऑकर बाय सेवरल मेथड्स, जैसे कोनिडिया, कोनिडिया इन पेनिसिलियम, कोनिडिया इन पेनिसिलियम, जूस्पोर्स, जूस्पोर्स इन क्लैमिडोमोनास, जूस्पोर्स इन क्लैमिडोमोनास। चलिए और बताइए, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और कोई मेथड्स, गेम्यूल्स, गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। और क्या है, गेम्मा कप्स, गेम्मा कप्स इन मार्केंशिया, गेम्मा कप्स इन मार्केंशिया। ठीक है, क्लियर। So these are all different methods of asexual reproduction. Asexual reproduction is very fast reproduction, बहुत ही fast reproduction होता है, and asexual reproduction is occurring only under favorable condition, बहुत favorable condition होना चाहिए। Whenever unfavorable condition starts, unfavorable condition आते हैं, the organism changes the type of reproduction, ठीक है। इवन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, कहाँ पे रह रहे हैं वो, फेवरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, दैट आल्सो डिसाइड द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके चलिए अभी हम देखेंगे यहां पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। कुछ क्वेश्चंस करेंगे एवरीडे, हर क्लास में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, टिपिकल कंफ्यूजिंग वन। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज बाइसेक्सुअल, क्वेश्चन है बाइसेक्सुअल एनिमल आइडेंटिफाई करना है आपको, बाइसेक्सुअल एनिमल। ऑप्शंस आर गिवन, बाइसेक्सुअल एनिमल आइडेंटिफाई करना है। एंड्स आर गिवन, कॉकरोच इज गिवन, लीच is given, wasp is given। देखिए bisexual animal out of these 4 options, ants are having separate male and female, कॉकरोच तो कंपलसरी मालूम है, मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच सेपरेट होता है। लीच,
लीच जो है एक बाईसेक्सुअल एनिमल है. Bisexual animals are those in which both male and females are present in same individual. Bisexual animal also called hermaphrodites. hermaphrodite भी बोलते हैं. hermaphrodite भी बोलते हैं. So remember, what are the example of bisexual animals? बाइसेक्सुअल एनिमल के एग्जाम्पल पूछेंगे तो लीच बोलेंगे आप. लीच का साइंटिफिक नेम क्या जाता है, याद है आपको? हिरुडिनेरिया. हिरुडिनेरिया, ठीक है. इवन अर्थवम, अर्थवम इज आल्सो बाइसेक्सुअल. अर्थवम इज आल्सो बाइसेक्सुअल. फेरेटीमा, फेरेटीमा साइंटिफिक नेम फेरेटीमा, अर्थवम. चलिए नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे. वन मोर. organism type of reproduction. Organisms reproduces by different methods. By different methods. It depends on what? It depends on what conditions. It depends on what condition. मतलब कभी ऑर्गेनिज्म आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, एंड कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर रहा है. सो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कंडीशन, विच टाइप ऑफ कंडीशन डिसाइड. एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो डिसाइड. देखिए आंसर क्या है इसका. एनवायरमेंटल फैक्टर, whether conditions are favorable or unfavorable. Environmental factor. और second reason देखिए यहां पर, there are two reasons on what condition type of reproduction is decided. Internal physiology. Internal physiology of organism. ठीक है. अब देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है. मार्केंशिया फॉर एग्जांपल. मार्केंशिया इज डूइंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ मार्केंशिया डिपेंड्स ऑन व्हाट? फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर. अगर कंडीशन फेवरेबल रहेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनफेवरेबल रहेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So that's why organism reproduces by different method. It depends on what condition means environmental factor as well as internal physiology. They decide the type of reproduction. Identical offsprings. Identical offsprings are produced in what type of reproduction? Identical offsprings are formed in identical मतलब same offsprings, genetically morphologically similar offsprings. Identical offsprings are formed in number 1 asexual reproduction. क्लोन्स बोलते हैं ना, इसलिए morphologically and genetically similar asexual reproduction. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं. Which organisms are not having natural death? Which organisms are not having natural death बोल तो क्या बोलेंगे? Unicellular organisms are immortal. While unicellular organisms are immortal because parental body split into two daughter cells at the time of asexual reproduction. In unicellular, cell division and reproduction are same. Synonym. Synonym मतलब same meaning.
cell division and reproduction are same in case of unicellular organism, whereas in multicellular organism cell division is different thing, reproduction is different thing. ये भी याद रहना है आपको, important है ये. Zoospores are flagellated or non-flagellated? Very, very important. Zoospores are flagellated. Flagella है उनके पास, flagellated हैं वो, flagella present है, motile हैं. ठीक है. So in today's class we have seen what is reproduction. Reproduction is a process which is necessary for continuity of a species on the earth. Reproduction occur by various means: asexual reproduction, vegetative reproduction, as well as sexual reproduction. Uniparental reproduction are asexual as well as vegetative. Vegetative ये जो word है ये plants के लिए use कर रहे हैं हम, higher plants के लिए. अगर lower organism में हो रहा है reproduction, asexual बोलेंगे. अगर यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं? यूनिपैरेंटल 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, asexual and vegetative. यूनिपैरेंटल और asexual and vegetative 2 टाइप के यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन है, asexual and vegetative. ठीक है. बट जो टर्म asexual है, asexual term is used for lower organisms like monera, protista, algae, ये वर्ड यूज करते हैं हम. हाइयर प्लांट्स में वेजिटेटिव वर्ड यूज करेंगे हम. हाइयर प्लांट्स में, for higher plants we are using the term vegetative reproduction, and asexual reproduction occur in those organisms which are having very simple body, simple organization. ठीक है. So in next class we are going to discuss about what is vegetative reproduction occurring in higher plants and what are the different methods of vegetative reproduction that we will see in next class. Thank you.